Today we are going to discuss about the manufacturing industries. So we are going to see about the manufacturing industries. Now we know that manufacturing industries is that sector of the Indian economy in which we manufacture the goods. Okay, so when we are talking about the economic sectors, then if we talk about the secondary sector, so in secondary sector we have manufacturing industries. So these are the industries which are responsible for the production of the goods. Okay, now let's see. So, production of goods in a large quantity after processing from the raw material to more valuable product is called manufacturing. Now, what is manufacturing? So, if you take a raw material and you process it, okay, and then you convert it into a more valuable good or into a more valuable product, so this process is called manufacturing. तो हमने क्या किया कि हमने कोई रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, क्या किया, प्रोसेस, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया और उससे हमने प्रोडक्ट बनाया। तो ये प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो भी कुछ करा, ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो भी किया, जो भी हमने प्रोसेसिंग करी, जो भी रॉ मटेरियल में मॉडिफिकेशंस करे, चेंजेस करे, जिससे कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो वही प्रोसेसेस आपके क्या कहलाते हैं, वही प्रोसेसेस आपके मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ओके, सो do you know that paper is manufactured from wood? Now paper is made up from the wood, we know. So wood here is the raw material and you made paper out of the wood. Then sugar is a sugar from sugar cane. So sugar cane is a raw material and you converted into sugar. Iron and steel from iron ore and aluminium from bauxite. So iron and steel you obtain from iron ore, right? You obtain aluminium from bauxite. तो bauxite एल्यूमिनियम को बनाने का एक रॉ मटेरियल है। आयरन और आयरन एंड स्टील को बनाने का एक रॉ मटेरियल है। शुगर केन शुगर बनाने का रॉ मटेरियल है। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम yarn which itself is an industrial product? आपको ये भी पता है कि कुछ तरह के क्लोथ्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं यान से, वो इट्सेल्फ वो खुद ही एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। एंड दिस yarn वी obtain from the industries, that means yarn is itself an industrial product. Okay, now people employed in secondary activities manufacture primary material into finished good. People employed in secondary activities ये कौन सी एक्टिविटी है, हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो दिस इज द secondary activity in which we basically manufacture the goods, okay, or we convert or modify the products of the raw of the primary activity and we make a new product out of it. That means जो primary activity में product बनाया गया है, we modify that product of the primary activity and we create something new. तो अगर आपने कॉटन की बात की, कितने इंक साइज बहुत ज़्यादा है, हम कम कर लेते हैं। अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन इज द प्रोडक्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कॉटन क्या है, एक प्रोडक्ट है। ओके, इट्स अ प्रोडक्ट इन द प्राइमरी सेक्टर, बट
we use this cotton we use this cotton as a raw material where in our industries to make clothes out of it clothes out of it. So getting my point that cotton, which is a product in the primary activity, is used as a raw material in the industrial sector or in the secondary sector. Okay, now let's move ahead. So what else are they saying? That people who are employed in the secondary activities, they manufacture the primary material into finished good. Now raw material is synonymous to primary material. Primary material is the very initial stage of a good. Okay, for example cotton, right? Now you have cotton bolts. Now these cotton bolts are basically the, तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग भी एम्प्लॉयड होते हैं ना सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, सो व्हाट दे डू, जो प्राइमरी मटेरियल है उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में. The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, they fall into this category. Into this category, that means in this secondary sector category. So, all the workers who are employed in the steel factory, car, breweries, all of these people are basically those people who are involved in some kind of manufacturing, and this manufacturing is of the of the finished good out of the primary material. So you have primary materials, you have to convert it into the finished good, right? So all the workers who are doing these works, they are employed in basically the secondary sector. Some people are employed in providing services. Now not only here I'm talking about production of goods, even services, there are people who are engaged in some kind of services which is required in the secondary sector. For example, if I produce cotton, see the example, if I produce cotton, if I produce cotton, okay, I'm a farmer and I produced cotton. Now I have contracted a factory or an industry in which my cotton is going to be converted into cloth or in any other finished product. Yes, obviously it's going to be cloth, right? Because out of cotton we can only have clothes. So now I have contracted with a industry or a factory who will take this cotton and will convert this cotton into a finished product. Okay. Now to take this cotton to the industry, here is my industry, here is my industry, this is my industry. So if I have to transport cotton from the farmer's field to the industry, I would need somebody who will transport it, who will who will provide me service and who will take this cotton to the industry. So here I will require ट्रांसपोर्टेशन एंड, अब ट्रांसपोर्टेशन चाहिए करना है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो यहाँ पे भी कुछ लोग एंगेज होंगे जो कि क्या काम करते होंगे, ट्रैक्टर में दे विल लोड माई कॉटन एंड उस लोडेड कॉटन को फिर वो अनलोड कर देंगे, इंडस्ट्री में पहुंच करके इंडस्ट्री को सौंप देंगे वो कॉटन. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो
दैट ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको टर्शरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट दिखा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, अब कुछ लोग एंगेज होंगे और उनको मिलेगी इनकम इस काम को करने से। ओके, सो what we were discussing. In this chapter, we are mainly concerned with manufacturing industry. So we are not going to look for the services basically. Okay, we are not going to look for those people जो service provide कर रहे हैं. हम केवल industries देखेंगे जो manufacturing करती हैं, which fall in the secondary sector. Very important to be noted that industries जो कि manufacturing का काम करती है, they fall in which category? They fall in the secondary sector. In economic strength, the economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries, to be noted, very important. कि किसी भी देश की जो डेवलपमेंट का जो मेजर है, जो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमने एक बेस लिया है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, फ्लरिश कर रही हैं, दैट मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम कहते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ना, मैन्युफैक्चरिंग क्यों ज़रूरी है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द रीजंस बिहाइंड आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दे मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। earlier we do not have tractors, we do not have machines जो कि एग्रीकल्चर को फास्ट कर सके, लेकिन आज ऐसी ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, डिवाइसेस आ गई हैं, है ना, व्हीकल्स आ गए हैं जिनकी हेल्प से अब एग्रीकल्चर फास्ट हो पा रहा है। और वो सारी जो चीज़ें बनी हैं, इक्विपमेंट बने हैं, ट्रैक्टर बना है, ऑल ऑफ देम आर मेड इन दीज इंडस्ट्रीज ओनली। ओके, so these manufacturing industries, they not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy. यहाँ पे बोलते हैं कि ये हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही है, एंड इस तरह से दिस इज क्रिएटिंग अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। दे ऑल्सो रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. Very important. Yes. देखो, पहले क्या होता था कि आपने कुछ पढ़ाई करी नहीं करी, आप खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। क्या करते थे? एग्रीकल्चर, ठीक है, ये करते थे लोग। अब एग्रीकल्चर जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको सीड उगाना है, बीज उगाओ, आप बीज डालोगे, वो ग्रो करेगा पेड़ या पौधा जो भी है, और फिर हार्वेस्टिंग हो जाएगी, बिक्री होगी, बस दैट्स ऑल, पैसा आप कमा लोगे। बट एक ऐसा टाइम होता है फार्मर्स का वेन दे आर इडिल, वेन दे डू नॉट हैव एनी वर्क, दे वांट वर्क, दे आर सर्चिंग फॉर वर्क, एंड तब वो कहीं से भी एग्रीकल्चर का छोटा मोटा काम करके पैसा, बहुत हैंडफुल ऑफ मनी कमा लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के आने से क्या हुआ कि अब लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर तो करा ही, साथ में अब वो नौकरी पे लग गए, इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए, इंडस्ट्रीज में वो जॉब करने लग गए, जॉब करने लग गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज में वो जॉब करने लग गए। अब इससे क्या होता है
कि उनका जो अब जब एग्रीकल्चर तो कर ही रहे ना, एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हैं, तो जब खेती बाड़ी का टाइम होता है तो खेती बाड़ी करते हैं और जॉब भी साथ साथ चलती रहती है, तो डुअल इनकम मिलती है, एग्रीकल्चर से भी आएगी और फिर नौकरी कर रहे उससे भी आएगी। अब जब वो इडल होते हैं, इडल यानी जब एग्रीकल्चर का काम नहीं बचता, जब एग्रीकल्चरल काम नहीं बचता, एग्रीकल्चर का खेती बाड़ी का काम नहीं बचता है, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है और वो जो फ्री पीरियड आता है ना फार्मर्स का, जब वो नौकरी ढूंढते थे, तो अब क्या है कि उन्हें नौकरी नहीं ढूंढनी क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक टाइम पीरियड पे तो उनको डुअल इनकम मिल गई, और एक टाइम पीरियड पे जब उनको एक जगह से इनकम नहीं मिली तो जॉब जो कर रहे थे वो वहां से इनकम उनको मिलती। ओके। अब यहाँ पे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग नॉट ओनली, ओके ये तो हो गया ना। तो अर्लियर जो लोग थे वो केवल अपनी एग्रीकल्चरल पर ही डिपेंड करते थे, बट बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब सेकेंडरी में तो आपने देखा इंडस्ट्रीज के थ्रू आ गए वो नौकरी में, उसके अलावा टर्शरी में भी आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि अगर वो किसी फैक्ट्री पे जॉब नहीं कर रहे तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो वो करते रह गए। ट्रांसपोर्टेशन का काम इन द सेंस कि जैसे कॉटन उगाई थी तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे कोई चाहिए था, तो वो टर्शरी सेक्टर होता है, तो वो वाले काम में ये आ गए। ओके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है? प्री कंडीशन है। क्या है? एक प्री कंडीशन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन। इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। इट्स नेसेसरी कंडीशन इफ़ यू वांट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम आवर कंट्री। अभी हमने देखा ही किस तरह से कि ये हेल्प कर रहा है आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने में, है ना। कोई भी फ्री नहीं बैठता है, अगर कोई एक काम नहीं है तो दूसरे काम में दे आर एंगेज्ड। ओके। This was the main philosophy behind the public sector industries and the joint sector ventures in India. Public sector industries और joint sector ventures, पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी इंडस्ट्रीज और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर, बस शॉर्ट में समझा रही हूँ, है ना। और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम करते हैं तो वो आपका जॉइंट सेक्टर कहलाता है। ओके। वो आपका जॉइंट सेक्टर कहलाता है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही काम कर रहे हैं, दैट इज दी जॉइंट सेक्टर। ओके। अब आगे देखते हैं। It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। अब इंडस्ट्रीज़ को सेटअप होने के लिए मार्केट चाहिए होता है और बहुत सी अदर कंडीशंस हैं जो उनको चाहिए होती हैं, लाइक वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको रिसोर्सेज जो कि सिटीज़ के इलाके में नहीं मिल पाते वो ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़ में मिलता है, तो वो वहाँ से अपने सेटअप कर लेते हैं इंडस्ट्रीज़ को। तो इस तरह से ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है ना, कि ये इलाका गांव का है या ये शहरी है, ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है। आपने गांव में भी सरसों के खेत के देखे होंगे, बहुत सारा फैक्ट्रीज देखी होंगी, राइट। सो यही इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने इधर बता दी आपको।
एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। अब क्या होता है, आपने इंडिया में कुछ बनाया और उसको दूसरे देशों में बेच दिया, ऐसा होता है ना। इंडिया में तो बहुत कॉटन बनती है, यू नो दिस थिंग दैट इंडिया में बहुत कॉटन बनती है, इंडिया में बहुत कॉटन बनता है। कॉटन, इंडिया में बहुत कॉटन बनता है। ये इंडिया से जो कॉटन है इज एक्सपोर्टेड, इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस में, यूके में। यहाँ पे इन देशों को हम कॉटन बेचते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, नाउ countries that transform their raw material into wide variety of finished goods of higher value are prosperous। आपने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बना दिया, आपने रॉ मटेरियल से एक अगर फिनिश्ड गुड बनाया एंड दैट टू ऑफ गुड क्वालिटी, अगर अच्छी क्वालिटी का फिनिश्ड गुड आपने बनाया है, तो ये क्या करेगा, आपकी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करेगा, कंट्रीज मतलब आपकी कंट्री को प्रॉस्परस बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वेराइटी ऑफ finished goods of higher value are prosperous। वो कंट्रीज जो कि रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके हायर वैल्यू, अच्छी अच्छी कीमत का कोई गुड बनाती हूँ, एंड दैट टू ऑफ वाइड वेराइटी, अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ, है ना। तो वो उस देश की प्रोस्पेरिटी बढ़ाता है। इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाइज इंक्रीजिंग द डाइवर्स इन एंड इंक्रीजिंग इन डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बढ़ाओ और डाइवर्स करो, फैलाओ, दोनों चीज़ें करो। जितना आप ज़्यादा बढ़ाओगे अपनी इंडस्ट्रीज़ को, उतना ही इट वुड बी बेनिफिशियल। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एक्सप्लेन, इलेबोरेट कैन बी द क्वेश्चन, द क्वेश्चन कैन बी, अच्छा एक क्वेश्चन लिखते जाए यहाँ पे आप, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन, व्हाट आर the importance of manufacturing industries। ठीक है, what are the importance of manufacturing industries, क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। तो 1 2 3 4 और एक पांचवा पॉइंट भी इनमें से काट कूट के बना लेना। यू वुड इट कैन बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्कर। ओके, और यहाँ पे देखो, हाँ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, ये हिस्सा दे देंगे, ठीक है, और लिख देंगे आगे इलेबोरेट। अब आप इलेबोरेट करते रहो। देखो, दे मूव हैंड इन हैंड, कैसे, फॉर इंस्टेंस
Agro industries in India have given major boost to agriculture by raising its productivity. जो एग्रो इंडस्ट्रीज है इंडिया में, है ना, एग्रो इंडस्ट्रीज जो होती है इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. एग्रो इंडस्ट्रीज को यहाँ पे ना हटाओ, एक चेंज कर लो यहाँ पे, ये एग्रो इधर हटा लो. ठीक है, लिखो दैट जो इंडस्ट्रीज है इंडिया में वो एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है. They depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pump, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipe. मैंने यहाँ पे ना एग्रो हटा दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर्स देती है, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन पम्प्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब देती है ना, और एग्रीकल्चर को बूस्ट करती है. एग्रीकल्चर भी क्या है कि एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर क्या करता है, ये इंडस्ट्रीज को बूस्ट करता है. कैसे? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ना, एंड है ना, स्टार मार्क दिस पॉइंट कि वो रॉ मटेरियल लेती हैं. किससे रॉ मटेरियल लेती है इंडस्ट्रीज? एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती है. और ये इंडस्ट्रीज इन रिटर्न मतलब ऐसा करती हैं कि फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये इंडस्ट्रीज को बेचती हैं. तो देखो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं. तो अब इंडस्ट्रीज ने क्या किया कि इंडस्ट्रीज ने प्रोवाइड किया इक्विपमेंट्स को, या पाइप्स हो गए, है ना, पाइप्स हो गए, अरे पाइप्स, पीवीसी, ईटीसी, है ना, टू द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को. और इन रिटर्न व्हाट एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड द इंडस्ट्रीज, दे प्रोवाइडेड इंडस्ट्रीज विद रॉ मटेरियल, ठीक है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. ठीक है, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. तो सीबीएसई आपको क्वेश्चन ऐसे देख सकता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, इलेबोरेट. तो यहाँ पे आपने क्या बताना है कि दोनों हैंड इन हैंड चलती है. एग्जाम्पल, ए इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करती है बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. हाउ? उसको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा के, HIV सीड्स प्रोवाइड करवा के, एंड इरिगेशन के न्यूअर मेथड्स प्रोवाइड करवा करके. ठीक है, तो इरिगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, ये सब कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करवा रही है एग्रीकल्चर को. वेयर बाय एग्रीकल्चर भी तो कुछ कर रहा है ना इंडस्ट्रीज के लिए. तो एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल. ओके, तो आप इस स्टार्ट को याद रखना. इंडस्ट्रीज are providing pipes, PVC, and HIV seeds, fertilizers, insecticides to agriculture, whereas agriculture is providing raw material to the industries. ठीक है. Thus, development and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturalists in increasing their production but also made the production process very efficient. अब जैसे जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बूस्टअप होती गई तो इंडस्ट्रीज़ के बीच में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बीच में कंपटीशन बढ़ा. इस कंपटीशन के बढ़ने से एग्रीकल्चरलिस्ट को यानी फार्मर्स को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब उनकी प्रोडक्शन बढ़ने लग गई थी. कैसे? इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आई, सब एक रेस में थे कि हमें बेटर परफॉर्म करना है दूसरी इंडस्ट्री से. तो इस तरह से, ठीक है. So in the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive.
Self sufficiency alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality with those in international market. Only then we will be able to compete in the international market. अब इंडिया में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं तो सब कहती हैं कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल भी इंडियन है और हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो इंडियन है ही। तो आत्मनिर्भर भारत हमारा है क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज इंडिया के ही हैं। लेकिन आपकी सेल्फ सफिशिएंसी ही इनफ नहीं है, आपको एट पार क्वालिटी के गुड्स बनाने होंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब जो ट्रेड हो रहा है वो केवल इंडिया इंडिया या विद इन द कंट्री नहीं हो रहा है, कंट्री से बाहर जाकर भी हो रहा है। अगर आज एक पर्सन है, लेट्स से इफ वी हैव अ पर्सन नेम्ड एज ए, ये एक ए नाम का व्यक्ति है, इसे एक लैपटॉप खरीदना है, एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है। अब उसे लैपटॉप खरीदने के लिए बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी। वो अमेरिका में कोई कंपनी ने बनाया लैपटॉप भी खरीद सकता है, जापान में बनाया हुआ लैपटॉप भी खरीद सकता है, या इंडिया में भी अगर कोई लैपटॉप की कंपनी है जो लैपटॉप्स बनाती है तो उसका लैपटॉप भी खरीद सकता है। तो एक इंसान के पास अब इतनी चॉइसेस हैं, है ना, और ये सभी चॉइसेस उसको वर्ल्ड वाइड मिल रही हैं। तो ऐसे केस में इंडिया की कंपनी को भी बेटरमेंट करना पड़ेगा, या दूसरे देशों की कंपनी को भी बेटरमेंट करना पड़ेगा अपना, सो दैट वो वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन के लायक बन सके, या कंपटीशन में उनका भी एक हिस्सा हो सके, वो भी कंपटीशन में जो रेस चल रही है इसका पार्टिसिपेंट बन सके। तो सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ कि हमने अपना चीज़ बना लिया। आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की कि जब कंज्यूमर या कोई भी कस्टमर उस गुड को या उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहे तो वो आपके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को भी खरीदे, उस इंडस्ट्री के बनाए प्रोडक्ट्स को भी खरीदे। ओनली देन वी विल बी एबल टू कॉम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये इंडिया के लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए कहा गया है कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को अपना क्वालिटी लेवल सुधारना पड़ेगा अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहती हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्रीज़ ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है हमारी देश की इकोनॉमी में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल इकोनॉमी में। Over the last 2 decades, the share of manufacturing industry over the last two decades यानी कि तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट 2 डिकेड्स यानी पिछले बीते कुछ 20 सालों में ऐसा ये देखा गया है, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ स्टेगनेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी। तो ये कुछ बीते 20 सालों में देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी जीडीपी में वो स्टेगनेटेड रहा है, यानी कि फिक्स्ड रहा है 17% पर, आउट ऑफ द टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गुड्स और गैस। यहाँ पे अगर आपको ये समझ नहीं आया तो हम यहाँ पे अच्छे से देखते हैं क्या है। जो भी इंडस्ट्रीज़ है ना वो दो तरह की होती है, इंडस्ट्रीज़ दो तरह की होती हैं। एक इंडस्ट्री होती है प्राइमरी सेक्टर की, एक होती है प्राइमरी सेक्टर की इंडस्ट्री, प्राइमरी सेक्टर की, और एक होती है सेकेंडरी सेक्टर की। अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ की, तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि प्राइमरी सेक्टर की खुद की डेफिनेशन क्या है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाओगे जो कि नेचर से डिराइव किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने माइनिंग करके कोयला निकाला। कोल इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। ये कैसे बना है या ये कैसे ऑब्टेन हुआ है? आफ्टर एक्सप्लॉटिंग द नेचर, आफ्टर एक्सप्लॉटिंग द नेचर।
तो जब नेचर से आप कोई चीज़ को डायरेक्टली डिराइव करते हो तो वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, ठीक है, या वो प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। अब आपने माइनिंग इंडस्ट्री अगर सेटअप करी है तो आप क्या करेंगे, आप माइनिंग करेंगे या क्वायरिंग करेंगे, और ऐसा करके आप कोल या जो भी मिनरल आप सॉइल या अर्थ के नीचे से निकालना चाहते थे वो निकाल लेंगे, सिंपल। तो ये क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट ऑब्टेन किया है वो प्रोडक्ट एक नेचुरल प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट नेचर को एक्सप्लॉइट करके बना है। तो प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि नेचर से आपको रिसोर्स, नेचर से आपको कोई प्रोडक्ट दे रही हैं। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज में आपके कपड़े बनाने की इंडस्ट्री आ जाती है, पेपर बनाने की इंडस्ट्री आ जाती है, शुगर केन से शुगर बनाने की इंडस्ट्री आ जाती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी कहते हो, वेरस प्राइमरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज आती है उनका एग्जाम्पल है माइनिंग, क्वेरिंग एंड ये सब इंडस्ट्रीज। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम बात करें कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रहा है इंडस्ट्रीज का, वो 27% रहा है। यानी कि इंडिया की जीडीपी में 27% जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो इंडस्ट्रीज का रहा है, ओनली एंड ओनली इंडस्ट्रीज, नॉट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। Out of these 27%, 17% इंडस्ट्रीज कैसी हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, और बची हुई 10% क्या हैं, वो प्राइमरी सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज हैं। यानी कि आपने देखा कि टोटल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 27% रहा है। अब इंडस्ट्रीज जैसे कि हमने देखा दो तरह की होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन रहा है आउट ऑफ दिस 27% इज ओनली 17%, एंड द रिमेनिंग 10% इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कितना कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का और प्राइमरी इंडस्ट्रीज का। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब। नाउ ये जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 17%, नो दैट इज ओनली 27%, बिकॉज अभी हम यहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। So this contribution is much lower in comparison to some East Asian economies. East Asian economies का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना। तो चाइना का अगर आप एग्जाम्पल और इंडिया का एग्जाम्पल लो, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड चाइना, बट ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी इकोनॉमी है चाइना की, तो वहाँ पे 25 से 35% कॉन्ट्रीब्यूशन देखा गया है इंडस्ट्रीज का इन देयर नेशनल इकोनॉमी। यानी चाइना की नेशनल इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसमें 25 to 35% कंट्रीब्यूशन किनका रहा है, इंडस्ट्रीज का रहा है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन स्टेगनेटेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। अब एक ट्रेंड देखा गया है कि किस तरह से ग्रोथ होती जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की हमारे इंडिया की नेशनल इकोनॉमी में। तो द ट्रेंड द ऑफ द ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैड बीन अराउंड 7% पर एनम। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो वहाँ पे कैसा ट्रेंड देखा गया है कि हर साल 7% का ग्रोथ होता है। ठीक है, जैसे एक साल मान लो कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन हुई तो अगले साल उस प्रोडक्शन में 7% का इंक्रीज देखा गया। ठीक है, द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। अगले डिकेड हमने जो अपना गोल बना रखा है दैट इज 12%। ओके, सो ये हमारा एक गोल है कि जो अगले 10 साल आएंगे तो उसमें जो ग्रोथ रेट होगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वो 12% बढ़नी चाहिए। Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. अब 2003 से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं
वो ग्रो कर रही हैं एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम हर साल। विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी, अगर सही पॉलिसीज को लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा एंड रिन्यूड एफर्ट्स, और नए एफर्ट्स डाले गए बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, देन इकोनॉमिस्ट ने ऐसा प्रिडिक्ट किया है दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो अगले जो 10 साल आएंगे उसमें हमारा जो ये 12% को अचीव करने का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। The National Manufacturing Competitive Council, that is NMCC, has been set up with this objective। इसका यही ऑब्जेक्टिव है, इसका यही काम है कि हमें अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। ओके, जो गोल सेट किया है 12% वहाँ तक पहुँचाना है। तो लेट अस again recall the name that recall the organization that has been set up, that is the National Manufacturing Competitive Council. National Manufacturing Competitive Council, its short form will be NMCC। अब यहाँ पे जो हमने देखा ना ये फैक्चुअल डिटेल्स थी। अभी हम देखते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री कहीं सेटअप हो रही है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखा जाएगा। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power, market। इसे याद करने का हम कोई भी निमोनिक नहीं लगाते, हम सबके पीछे रीज़न देखते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री को सेटअप होना है तो उसको चाहिए होंगे वो इंग्रेडिएंट्स या वो रॉ मटेरियल जिसको यूज़ करके वो प्रोडक्ट बना सके। बेसिकली एक फैक्ट्री क्या है, किचन है जहाँ पर कि आप अपने खाने पीने की चीज़ें तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल को हम यूज़ करते हैं और रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले इन सभी एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि क्यों हमको यही सब चीज़ें हैं अगर किसी इंडस्ट्री को सेटअप करना है तो चाहिए होंगी। एक सेकेंड। सबसे पहले हमें क्या बोला है, दैट व्हाट वी नीड इज रॉ मटेरियल। पहली चीज़। दूसरी, यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। रॉ मटेरियल चाहिए, कैपिटल, और क्या क्या लिया है इन्होंने, लेबर, यस, और यहाँ पे लिया है पावर एंड मार्केट। पावर एंड मार्केट। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दैट व्हाई डू वी नीड रॉ मटेरियल। व्हाई डू वी नीड रॉ मटेरियल? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रॉ मटेरियल ही है वो चीज़ जिससे प्रोडक्ट बनेगा। रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने का ही काम इंडस्ट्रीज़ का है। तो इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो रॉ मटेरियल जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होंगी, राइट। अब यहाँ पे आता है कैपिटल। कैपिटल दैट इज मनी। मनी के साथ साथ प्रॉपर्टी, लैंड। तो कैपिटल पैसा, ठीक है। अगर आपके पास मनी है देन ओनली यू कैन अफोर्ड टू सेट अप एन इंडस्ट्री, देन ओनली यू आर एबल टू सेट अप, देन ओनली यू आर एबल टू पे योर लेबर्स, देन ओनली यू आर एबल टू परचेज द रॉ मटेरियल। ओके, तो जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी, खरीदनी होगी, वो कैपिटल से ही आप खरीद सकते हो। या जो भी आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उस ज़मीन को खरीदोगे ना, आप उस लैंड को खरीदोगे तो उस लैंड को खरीदने के लिए भी आपको पैसे चाहिए। देन कम्स द लेबर। Now you are not going to do the work, you are not going to do each and every work in a industry,
यू विल हायर द लेबरर्स। नाउ ये जो लेबर आप हायर करोगे ये दो तरह की होगी, एक होगी स्किल्ड लेबर और एक होगी अनस्किल्ड लेबर। एक होगी स्किल्ड लेबर और एक होगी अनस्किल्ड लेबर। ओके, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर में वो सारे लोग आ जाते हैं आपकी इंडस्ट्री के या कंपनी के, ये वो लोग जो कि एजुकेटेड है। अनस्किल्ड लेबर का क्या काम है? ये नहीं कि अनस्किल्ड लेबर का काम ही नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ दे आर इंपॉर्टेंट? लोडिंग, अनलोडिंग, कैरिंग, ऑल दीज वर्क्स आर डन बाय दिस अनस्किल्ड लेबर। फॉर एग्जाम्पल, सरसों का तेल निकाला हमने, ठीक है। अब सरसों के तेल को निकालने के लिए मशीन्स लगी हैं। मान लो कोई मशीन खराब हो जाती है तो व्हाट यू नीड, किसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी? आपको पड़ेगी ज़रूरत लेबर की। अब वो लेबर क्या कोई अनस्किल्ड लेबर होगी, वो स्किल्ड लेबर होगी जो कि क्या करेगी, टेक्निकल वर्क कर सकती होगी। तो वो लेबर जो कि टेक्निकल वर्क्स कर सकती है, जो कि एजुकेटेड है, वो स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आती है। और अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में वो लेबर आती है जो कि कैरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम कर सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, सरसों के तेल बनाया तो सरसों के तेल के केन्स को उठाने का काम जो करेगी एक इंडस्ट्री में, तो वो करेगी अनस्किल्ड लेबर, यानी कि वो लोग जो कैरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग ये सब काम कर सके। पावर का क्या मतलब है? पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी टू रन द मशीन्स। व्हाट यू नीड? पावर, ठीक है। एनर्जी चाहिए होगी, पावर चाहिए होगी। ये मैनुअल एनर्जी है, मैनुअल पावर नहीं है, ये पावर है इलेक्ट्रिसिटी की पावर। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो मशीन्स रन करेंगी, मशीन रन करेंगी तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए हम तो नहीं है ना, मशीन्स ही बनाएंगी। तो मशीन्स क्या है, वो रन करेंगी। अब मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, यानी पावर कट ऑफ हो जाता है, तो आपकी मशीन्स रन नहीं करेंगी, तो प्रोडक्शन विल स्लो डाउन। ये हम आगे देखेंगे कि इंडिया में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट हैव प्रॉपर पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, जिस वजह से प्रोडक्शन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जा रहा है। देन मार्केट। अब अगर मैंने एक शांति वाली जगह में इंडस्ट्री सेटअप करी, लेट्स से मैंने गई हिमाचल प्रदेश में और वहाँ पे मैंने एक इंडस्ट्री सेटअप कर दी। हिमाचल प्रदेश, हिमालयाज़, इन एरियाज़ को, जम्मू कश्मीर को कौन जानता है? हम सब जानते हैं, लेकिन कितने से वहाँ पे पॉपुलेशन होगी? बहुत मिनिमल पॉपुलेशन होगी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी? आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी अर्बन एरियाज़ में, दिल्ली में, मुंबई में या नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की वजह से वहाँ पे भी सेटलमेंट है, और जहाँ सेटलमेंट है, जहाँ पॉपुलेशन है, वही मार्केट है। मार्केट इज़ नथिंग बट द प्लेस जहाँ पे ट्रेड हो सके, और ये ट्रेड होगा ही तब जब लोग होंगे। इसलिए एक इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए चाहिए होगी ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहीं पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सभी जो यहाँ पे कंडीशंस हैं वो क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, लेबर रिक्वायर्ड है, एक्सेट्रा। सो इट्स रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर मुझे एग्जाम्पल बाद में देती हूँ, पहले लाइन बता देती हूँ क्या है। कि लाइन ये कह रही है कि एक आइडियल सिचुएशन है कि आपको सब कुछ ही मिल जाए, आपको लेबर भी मिल जाए, कैपिटल भी मिल जाए, पावर भी मिल जाए, मार्केट भी मिल जाए, सब कुछ एक जगह मिल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हो सकता है आपको एक जगह पे मार्केट मिल जाए, लेकिन consequently, manufacturing activity tend to locate at the most appropriate place where all the factors of the industrial location are either available or can be arranged at low cost. अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि सारी चीज़ें एक जगह तो मिलती नहीं है, इसलिए
कॉन्जिक्वेंटली एज अ रिजल्ट जो सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती हैं वो उन जगहों पे की जाती हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होती है वो ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे या तो ज़्यादातर रिसोर्सेज मिल जाए, ठीक है ना, और या फिर क्या हो कि जो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं वो अरेंज कर लिए जाएं लो कॉस्ट पे। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मेरी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, दिस इज़ द लोकेशन वेयर माई इंडस्ट्री इज़ सेटिंग, ये वो लोकेशन है, ठीक है। अब मैं क्या चाहूँगी कि या तो सभी जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे आसपास प्रेजेंट हों, या फिर अगर वो पास नहीं है तो जहाँ से भी रिसोर्सेज मिले, फॉर एग्जांपल मुझे इस कहीं प्लेस से रिसोर्स मिल रहे हैं तो यहाँ से जब मुझे रिसोर्सेज मिले तो वो एट लो कॉस्ट मिले, एट लो कॉस्ट, लो कॉस्ट, ठीक है। नाउ आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, अब जैसे ही कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है अर्बनाइजेशन फॉलोज, उसके बाद अर्बनाइजेशन होता है। अब कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री सेटअप हुई फिर अर्बनाइजेशन हुआ, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अर्बनाइजेशन हो रखा होता है और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। देखते हैं कैसे, इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो ये वो इलाका है जहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ है, जहाँ पे क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है। अब मेरा क्या मन किया कि मैं यहाँ पे जाकर के एक इंडस्ट्री सेटअप करूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इधर आऊँगी और देखूँगी कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन है, दैट मीन्स हाई पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो अच्छी है यहाँ पे, पॉपुलेशन तो यहाँ पे मुझे मिल गई, पॉपुलेशन तो मुझे मिल गई यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे पॉपुलेशन मिली, साथ ही मुझे क्या पता चला कि यार पॉपुलेशन है यहाँ पे, दैट मीन्स पॉपुलेशन जब इधर आई होगी तो उसने भी यहाँ पे क्या देखा होगा कि रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। दैट मीन्स देखो अगर मैं कहीं रहने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो लोकेलिटी कैसी है, वहाँ पे मुझे मार्केट कैसा मिल रहा है, ये सब कुछ। तो हाई पॉपुलेशन है दैट मीन्स मार्केट तो है ही अच्छा, मार्केट तो है ही अच्छा। मार्केट के साथ साथ चूंकि यहाँ पे हाई पॉपुलेशन है दैट मीन्स यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन वहीं ज़्यादा होती है जहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होता है, ये आपको पता है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता होगा, एग्रीकल्चर भी होता होगा। अब एग्रीकल्चर होता है दैट मीन्स यहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। एक एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। फिर और क्या हम कह सकते हैं, ठीक है, मार्केट मिल गया, एग्रीकल्चर मिल गया। अब देखो जहाँ पर अर्बनाइजेशन होता है ना, सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान उधर ही होता है कि यार यहाँ लोग रहते हैं तो उन्हें नुकसान ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मान लो एक घर खाली है तो उसकी मैं दो घरों की मालिक हूँ, एक घर में मेरी फैमिली रहती है और एक घर खाली है। तो मैं हर महीने मेंटेनेंस, हर महीने जो नई चीज़ें लाऊंगी या जो ध्यान ज़्यादा रखूंगी वो अपने उस घर का रखूंगी जहाँ पे लोग रहते हैं। जो घर खाली है उसमें क्या नई नई चीज़ें सजा कर मैं अकेले मज़े मारूंगी, कुछ भी नहीं है। तो अर्बनाइजेशन जहाँ है, जहाँ लोग हैं, तो वहाँ पर क्या है, सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, वहाँ पे सरकार प्रोवाइड करती है अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो यहाँ पे अच्छी पावर आती होगी, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, है ना, ये सब चीज़ें आ गई। अच्छा और क्या चीज़ होती है, आपको क्या लगता है कि और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं? तो ये तीन चीज़ें तो यहाँ पे हो गई ना। अब मान लो मुझे
कैपिटल की बात करें, कैपिटल, तो कैपिटल इज कैपिटल जो है वो तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट की ही होगी, उस इंडिविजुअल की ही होगी जो इंडस्ट्री लगा रहा है, तो वो इंडिविजुअल की होगी। तो देखो यहाँ पे अर्बनाइजेशन जहाँ है वहाँ पर कितने ज़्यादा फायदे हैं, है ना। तो इस वजह से जहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, दैट समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, सिटीज के आसपास लोकेटेड होती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन गो हैंड्स इन हैंड। सिटीज प्रोवाइड मार्केट, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड्स इन हैंड्स, इलेबोरेट। तो अब आप इसका इलेबोरेशन दोगे। सिटीज क्या देती है, मार्केट देती हैं और सर्विसेज देती है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मार्केट के साथ साथ और क्या क्या प्रोवाइडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो चुका है तो यहाँ पे बैंक्स होंगे एंड यहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा, लेबर भी यहाँ पे मिलेगी क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है। ठीक है, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये सब मुझे मिलेंगे फॉर माय इंडस्ट्री। सो मैनी इंडस्ट्रीज टेन टू कम। अब देखो, अब मेरी एक इंडस्ट्री आई यहाँ पे, एक इंडस्ट्री मेरी आई, एक इंडस्ट्री मेरी आई, एक किसी और की आई, कितनी सारी इंडस्ट्रीज इस इलाके में आ सकती हैं इन रिसोर्सेज को देखते हुए। ठीक है, सो मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस। यहाँ पे उन्हें एडवांटेजेस मिल रही है ना, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज उस जगह पे आ सकती हैं। ठीक है, बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमेरेशन इकोनॉमी क्या है कि जब एक सिटी में, एक अर्बन सेंटर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं to use the advantages offered by the urban centers, then this process is called agglomeration economics। ठीक है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या था कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्रीज tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers, this is known as agglomeration economies। okay, चलो आगे देखते हैं। In pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से पहले, मतलब सॉरी, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान यानी इंडिपेंडेंस से पहले ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी ना, दे वर लोकेटेड इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसी ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड होता था वो सीज के दौरान सीज जहाँ पे होते थे उन एरियाज में से किया जाता था, है ना, शिप्स भेजी जाती थी और इस तरह से किया जाता था। तो इस तरह से consequently there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by huge agricultural rural hinterland। इस तरह से क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे मुंबई मैंने आपको दिखाया है, कैलकटा है, उसके अलावा आपका, सॉरी कैलकटा को हमने गलत लोकेट कर दिया है। ठीक है, कैलकटा यहाँ पे है, चेन्नई यहाँ पे है और मुंबई यहाँ पे है ना। तो इन एरियाज़ में क्या देखा गया कि आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप हो रही थी और साथ में यहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टिविटी थी वो थी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इन एरियाज़ पे आपको क्या दिखेंगे, ट्रेड मतलब अभी नहीं, अभी तो है ही यहीं पे, बट प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम पर तो यही मेन सेंटर्स थे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड थी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड थी। तो अर्लियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड है मुंबई, कोलकाता
एंड चेन्नई। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। इंडस्ट्री और मार्केट का लिंकेज दे रखा है आपको। तो ये जो है इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ वैसे इसमें क्या है। दैट जैसे यहाँ पे उन्होंने शुरुआत इन, ठीक है, इनपुट डाला आपने। अब हम क्या करेंगे, हम इस इनपुट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करेंगे, वही चीज़ है। आप इसी डायग्राम को जो मैं बना रही हूँ ना, इससे बनाना। ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स इन्होंने दिया है, समझ ही नहीं आता कई बार। तो जो मैं बता रही हूँ आप इसे बना के आए तो अच्छा रहेगा, है ना। आप ट्रांसपोर्ट करेंगे और कहाँ पहुँचाएंगे, फैक्ट्री में। फैक्ट्री से में होगा क्या, ये प्रोसेस होगा। ब्रैकेट में लिख देना प्रोसेस। प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे, प्रोसेसिंग होगी। फिर फैक्ट्री से इसका अगेन ट्रांसपोर्टेशन होगा, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड। अगेन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये जो एरो है ये ट्रांसपोर्टेशन को शो कर रहा है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्ट होगा, फिर इसको आप कहाँ ले जाओगे, ट्रेडर्स के पास ले जाओगे। इन्होंने क्या ट्रेडर्स को शो किया है, फैक्ट्री आउटपुट बना, हाँ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इन्होंने सीधा इसका ट्रांसपोर्ट दिखाया है और ट्रांसपोर्ट करके अब आप इसे ले जाओगे मार्केट में। ठीक है, तो इनपुट फैक्ट्री में जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हाँ यहाँ पे आप बदल सकते हो। मैंने एक चीज़ जो गलत शो की है, फैक्ट्री में जाकर के आउटपुट बनेगा। हाँ, इस तरह से शो करेंगे आप, आउटपुट बनेगा। ये जो आउटपुट है फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा और फिर ये आएगा मार्केट में। अगर आपको मतलब उसे शो करना है ना आउटपुट को भी, तो ऐसे ही करना आप। ठीक है, एंड दिस इज योर ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम इन टर्म्स ऑफ योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए आप इसको बना लेना, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और यही सेम चीज़ें आपको जो इधर बताई गई है ना, द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। कहाँ फैक्ट्री लगाई जाएगी ना, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये देखकर सेटअप करता है कि यहाँ लगाने से क्या मुझे मतलब कम पैसा लगाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री जो सेटअप की जाती है वो लीस्ट कॉस्ट यानी कम पैसों को देखने के लिए होती है कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे तो क्या ज़्यादा खर्चा तो नहीं होगा ना, कम पैसों में अच्छा काम हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना, फैक्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये देखते हैं, फैक्ट्री ओनर्स ये देखते हैं कि यहाँ फैक्ट्री लगाने से क्या हमें प्रॉफिट बनेगा। तो बेसिकली अगर आप कहीं पे भी फैक्ट्री लगा रहे हो, आप क्या देखोगे कि कम पैसों में, लीस्ट कॉस्ट में, लीस्ट कॉस्ट में काम हो जाए, लीस्ट कॉस्ट में काम हो जाए, इसी चीज़ को आप देखते हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री।
कई जगहों पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि दे रिस्ट्रिक्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। और कई जगहों पे आपने देखा ना, लेबर की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, दैट मीन्स लेबर नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या वो सपोर्ट कर रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और क्या वहाँ पे लेबर है? लेबर अगर है देन इट्स वेल एंड गुड, इंडस्ट्री लगेगी, है ना। अगर है तो इट्स गुड सिचुएशन, suitable सिचुएशन फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। अगर नहीं है देन बैड सिचुएशन, नॉट suitable सिचुएशन फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, ओके। इसको भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपने एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम लर्न करना है, दैट इज आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यानी मार्केट कैसा है वहाँ का, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। नहीं, अभी इसको सीरियल वाइज करना है अपन को, ऐसे नहीं, सीरियल वाइज। सबसे पहले व्हाट यू विल सी द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल एट साइट। जो मुझे रॉ मटेरियल यहाँ मिलेगा वो कम दामों पे मिल जाएगा ना, ये चीज़। दूसरी चीज़ कॉस्ट, पहली चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये होगी, तीसरी चीज़ ये है, चौथी चीज़ ये है। क्या है दूसरी चीज़? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कि वहाँ पे प्रोडक्शन में मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट वहाँ पे क्या पास में ही है या फिर मुझे बड़ा लंबा चौड़ा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। अगर मार्केट पास है तो यहीं की यहीं ट्रेड हो जाएगा, अगर दूर है तो मुझे अपनी गुड को उधर तक ले जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज डिसीजन टू लोकेट अ फैक्ट्री। फिर जब आपने ये सब चीज़ें देख ली तो अब आप क्या करोगे? अब आप डिसीजन लोगे कि क्या मैं अपनी फैक्ट्री को यहाँ लोकेट करूँ। अगर आपको सही लगता है देन यू विल डू दिस। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ के टाइप। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हम सबसे पहले देखेंगे। ये इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन बना या शुगर केन बना या फिर जूट बना, तो ये सब चीज़ें जो हैं फैक्ट्री में ले जा कर के प्रोसेस की जाती हैं और कॉटन से कॉटन क्लोथ बना दिए जाते हैं, जूट से जूट के बैग्स बना दिए जाते हैं, रोब्स बना दी जाती हैं, शुगर केन से शुगर जैगरी ये बना दिया जाता है, खंडसारी बना दिया जाता है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल रहता है, इट इज फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी नहीं, फ्रॉम एग्रीकल्चर, इज फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है ना। कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा, ये सभी इंडस्ट्रीज जो हैं ये किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे बेस्ड है। जैसे अब अगर आपने सरसों की खेती की और सरसों जो मिला उससे आपने फैक्ट्री में भेज के मस्टर्ड ऑयल बनवा दिया, तो वो जो फैक्ट्री जहाँ पे मस्टर्ड ऑयल बना है वो भी एक क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अब देखो कॉटन है, कॉटन सबसे पहले प्रोड्यूस होगा, फिर ये कॉटन जो है ये यार्न बनेगा, दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। फिर जो फैब्रिक बनता है, यानी कि देखो
फैब्रिक होता है, जैसे आपने टी शर्ट खरीदी है तो आप क्या कहते हो कि मुझे टी शर्ट दिखाइए, लेकिन टी शर्ट बनती किसकी है, फैब्रिक की बनती है। टी शर्ट इज अ गारमेंट, ठीक है, वो गारमेंट है। तो फैब्रिक क्या है, जब कोई गारमेंट अनस्टिच, जब कोई कपड़ा अनस्टिच्ड होता है तो वो फैब्रिक है, उसमें स्टिचिंग नहीं हुई है। तो वीविंग एंड निटिंग से फैब्रिक बना, जो धागा है आपने उसको पिरोया पिरोया और एक फैब्रिक बन गया। फिर गारमेंट बनते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज गारमेंट बनाती हैं। फिर वो डाइंग एंड फिनिशिंग इंडस्ट्री पे जाता है, जहाँ पर उसमें डाई डाली जाती है, कलर डाला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गारमेंट बनने से पहले कलर ऐड कर दिया जाता है, और कई बार गारमेंट बनने के बाद कलर ऐड होता है, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, ठीक है। अभी मैं ना केवल जो अपनी ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं इनको ही आज करवाऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले आता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, ये या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो सकती है, या फिर ये है ना, फूड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। या तो ये टेक्सटाइल हो सकती हैं, या तो ये कपड़े बनाएंगी, या एडिबल्स बनाएंगी, ओके। एडिबल्स बनाएंगी, एडिबल्स में वो ऑयल बनाएं, या फिर वो चिप्स बनाएं, या फिर वो शुगर बनाएं, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखो, एग्रीकल्चर में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे पहले आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में देखो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखते हो तो वो कपड़ों की होती है, इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, जो भारतीय कपड़ा बनता है वो बहुत से देशों में बिकता है। इट्स ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री जो कि सेल्फ रिलायंट यानी सेल्फ सफिशिएंट है। इसमें क्या है, फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तक बनने का जो ये पूरा प्रोसेस रहता है, इसमें सब कुछ इंडियन है। रॉ मटेरियल इंडिया का है, प्रोडक्ट तो इंडिया का ही, तो रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। Now, it is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain from raw material to the highest value added products. उसके बाद आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो एंशंट, तो कॉटन टेक्सटाइल में क्या है देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ये सब डिवीजन है कॉटन टेक्सटाइल। इन एंशंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग, हैंड स्पिनिंग यानी हाथ से यान बनाए जाते थे, धागे बनाए जाते थे, एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स थी। आफ्टर 18th सेंचुरी जो पावर लूम थे वो आते हैं। हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है वो बहुत सफ़र करती है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। बहुत सारे रीजंस हैं, एक रीज़न ये भी है कि जो कॉलोनियल पीरियड था उस समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हमारे इंडिया से जो कॉटन था वो ले जाया जाता था, और वहाँ पर जाकर के उसे मशीन में कपड़ा बना दिया जाता था।
और फिर इंडिया में ही आके उसे बेच दिया जाता था। ठीक है, तो ये कॉलोनियल पीरियड के दौरान सेटबैक यानी बहुत बुरी पोजीशन हो जाती है हमारी कॉटन टेक्सटाइल की, बिकॉज दे कुड नॉट compete विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड, है ना। हमारे तो हाथ से बनाए जाते थे, वो मशीन से बनाते थे, वो मशीन से बनाते थे तो ज़्यादा फाइन भी होते थे और सस्ते भी होते थे, इसलिए इंडिया में जब वो आते थे ना, मिल मेड क्लोथ इम्पोर्ट होते थे इंडिया में, तो इंडिया के जो लोग होते थे वो वही खरीदते थे और कुछ नहीं खरीदते थे, खादी वादी तो नहीं खरीद पाते थे ना, इतने महंगे होते थे खादी तो। उसके बाद क्या आता है, इन अर्ली ईयर्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट। अब देखो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट यानी जहाँ कॉटन की अच्छी प्रोडक्शन होती है, तो गुजरात और महाराष्ट्र, इन्हें याद रखना। गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है, एक तो लेबर मिलती है, लेबर मिलती है, ठीक है। देखो क्या क्या मिलता है, एक तो लेबर मिलती है, रॉ कॉटन मिलती है, मार्केट मिलता है क्योंकि ये हाई पॉपुलेशन के इलाके हैं, ट्रांसपोर्ट। देखो लेबर तो उन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन लेबर भी यहाँ बहुत ही मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, बहुत मिलती है। इन्होंने रॉ मटेरियल कहा है आपको, और इन्होंने मार्केट कहा है, मार्केट भी मिलता है यहाँ पे क्योंकि ये हाई पॉपुलेशन के इलाके हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हाई पॉपुलेशन रीजन, हाई पॉपुलेशन के रीजन है ये। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है ट्रांसपोर्ट। अब आप पूछेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे यहाँ पे अच्छा है भाई, क्या यहाँ की रोड्स अच्छी हैं, बट यहाँ पे जो रीज़न है ना, दैट इज़ द सी पोर्ट इलाका है ये क्या है, सी पोर्ट का इलाका है, सी पोर्ट का इलाका है, यानी कि यहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी इजी है, फॉरेन ट्रेड इज इजी, फॉरेन ट्रेड इज इजी, दिस इज द रीजन। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लिख लो जल्दी से, क्या लिखा, रॉ मटेरियल है, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर भी है, ओके। ये पॉइंट लिखवाया गया था, ठीक है। सी पोर्ट का इलाका है, सी पोर्ट के होने से फॉरेन ट्रेड इजी हो जाता है, लिख लिया हो तो वी कैन इरेज इट। तो क्या क्या पॉइंट हो गए, रॉ मटेरियल है, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट फैसिलिटी है, लेबर, हाँ मैं कह रही थी लेबर है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का क्लाइमेट, ये तो हमने लिखा ही नहीं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, मॉइस्ट यहाँ का क्लाइमेट है। Moist climate is one of the important condition that is required for the growth of cotton. Important है, और इसी वजह से इन एरियाज पे क्या हो गया, लोकलाइजेशन हो गया था। किसका लोकलाइजेशन हो गया था, कॉटन का लोकलाइज, कॉटन इंडस्ट्रीज का लोकलाइजेशन हो गया था। तो जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का लोकलाइजेशन हुआ गुजरात में, महाराष्ट्र में। वाई, आपको आंसर लिखना होगा, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग द पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स, cotton ball pluckers, workers engaged in ginning, spinning, weaving, and डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सुइंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कितना तो एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को,
एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेटअप होने से जो कॉटन ग्रोइंग वीवर्स थे, हमारे कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स थे, वो खुश हो गए कि यार अब तो इंडस्ट्री आ गई है, ठीक है, अब हमें फ़ायदा होगा। तो एक फ़ायदा हुआ फार्मर्स को, दूसरा फ़ायदा हुआ कॉटन बोल प्लकर्स को। कॉटन बोल प्लकर्स वो लोग होते हैं जब जो कॉटन प्लांट है वो पक जाता है तो उसमें जो बोल है, बोल क्या होता है, इट्स नॉट बॉल, इट्स बोल। बोल होता है एक लेमन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से क्या बर्स्ट हो रहा होता है, कॉटन निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये कॉटन बोल प्लकर्स होते हैं जो कि उन लेमन लाइक स्ट्रक्चर्स को तोड़ते हैं। वर्कर्स जो कि जिनिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, जिनिंग यहाँ पे बताया नहीं था ना यहाँ पे, ठीक है, वीविंग करते हैं, उसके बाद डाइंग, अरे ये क्या हो गया, डाइंग का क्या मतलब है, डाइंग यानी कि जो उसे कलर देंगे कपड़े को, डाइंग होगी, डिजाइनिंग होगी, कपड़ा के इस डिजाइन को होना चाहिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लोथ्स वी वेयर, तो वो डिजाइनिंग देते हैं, कुछ डिजाइनर्स होते हैं, पैकेजिंग किस तरह ने पैक करना है, टेलरिंग, फिर ये टेलर के पास जाते हैं, वहाँ पे ये स्टिच होते हैं, स्यू होते हैं, है ना, बुने जाते हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो देखो, आपको एक चीज़ और बताती हूँ, फैब्रिक आपको पता है क्या होता है, और गारमेंट क्या होता है, हाँ, और एक फाइबर क्या होता है। देखो, फाइबर है धागा, फैब्रिक है कपड़ा, पर अभी ये सिला नहीं है, ये अभी सिला नहीं है, अनस्ट्रेच्ड, अभी स्ट्रिच नहीं हुआ है ये। और गारमेंट क्या है, स्ट्रिच्ड क्लोथ, स्ट्रिच्ड क्लोथ है, जो फैब्रिक है वो सिल गया है तो स्ट्रिच्ड क्लोथ है। ये इम्पोर्टेंट था बताना, क्योंकि आप लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि ये तीनों में है क्या, ठीक है। सो द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी इन द इंडस्ट्रीज। अब एक इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने कितनी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और कितनी और इंडस्ट्रीज में क्या जनरेट किया, काम जनरेट किया, केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि केमिकल्स एंड डाइज, देखो डाइज जो बनते हैं वो केमिकल्स के बनते हैं, तो केमिकल एंड डाई इंडस्ट्री खुश हो गई कि यार अब कपड़े बनेंगे हम, ये कपड़ों पे कलर करेंगे हम, है ना। पैकेजिंग इंडस्ट्री जो पैकेज करते हैं कपड़ों का, इंजीनियरिंग वर्क्स, मशीन्स बनेंगी, है ना, मशीन्स बनेंगी, तो ये था, ठीक है। अभी और कितना है ये देख लेते हैं, चलिए। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. देखो क्या है कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये सेंटर्स हैं स्पिनिंग के, यहाँ पे स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड है, और पूरे दुनिया में इतनी अच्छी स्पिनिंग कहीं नहीं होती जो हमारे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होती है, यानी फेमस जगह है ये स्पिनिंग की। लेकिन वीविंग इंडिया में हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी छोटे छोटे लोकेशंस पे होता जाता है, कोई बड़े स्केल में ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, इसलिए इंडिया में वीविंग अच्छी नहीं है, स्पिनिंग अच्छी है, ये आएगा पॉइंट अभी, ठीक है। तो वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉपरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइंस। वीविंग इतनी अच्छी नहीं है अब जो पहले थी, पहले यहाँ पे वीविंग होती थी कॉटन की, सिल्क की, जरी की, है ना, एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, तो बहुत अच्छा काम था पहले वीविंग का, बट अभी नहीं है। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन, स्पिनिंग अच्छा है यहाँ का, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच of the high quality yarn produced in the country.
इंडिया में वीविंग अच्छा, स्पिनिंग अच्छा है मगर वीविंग अच्छा नहीं है। वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी फैब्रिक। वीविंग में जो सप्लाइंग हो रही है वो लो क्वालिटी फैब्रिक की हो रही है, एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। क्योंकि हमारे इंडिया में जो वीविंग अभी हो रही है उसको अच्छा हम यार्न नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा यार्न प्रोवाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे इंडिया की वीविंग अच्छी नहीं है। इसलिए जो वीवर्स हैं छोटी छोटी लोकेशन पे वो जो लोकल टाइप के कपड़े बन रहे हैं, स्पिनिंग हो रही है, उनको यूज़ कर लेते हैं। हाई क्वालिटी कपड़े हम नहीं देते हैं वीवर्स को इंडिया में, क्योंकि वो इतना अच्छा कपड़ा नहीं बना सकते। वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम। आज भी यहाँ पे हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स नहीं, मतलब आज भी नहीं, सॉरी, वीविंग जो है वो किन से की जाती है? हैंडलूम से, पावरलूम से और मिल से की जाती है। हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज कॉटेज इंडस्ट्री। अब यहाँ पे इंडिया में क्या है, वीवर्स वीविंग की कॉटेज इंडस्ट्रीज है, छोटे स्केल पे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे जो लोग हैं वो हाथों से खादी बनाते हैं। इंडिया जो अपना यार्न है, अच्छा यार्न कहाँ, यार्न जो है उसे हम फाइबर कहते हैं, उसे हम फाइबर कहते हैं। और यार्न बनाया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। तो स्पिन किया हुआ हमारा यार्न इतना हाई डिमांडिंग है कि कुछ देश है यहाँ पे, ध्यान रखना, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट होता है। देखो दो तीन नाम है जो बहुत ही आसान है। एक तो है यूके और यूएसए। यूके यूएसए का इतना अच्छा क्लाइमेट नहीं है जो कि कॉटन की प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सके, इसलिए यहाँ पे कॉटन नहीं है, यार्न नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हो कह रहे हैं यूके यूएसए में हम यूके यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना यार्न जो हम बना रहे हैं। फिर रशिया फ्रांस आ जाता है, रशिया फ्रांस, इनको याद रखना। उसके बाद सिंगापुर, श्रीलंका, ये तो अपने साउथ में है ना, श्रीलंका, सिंगापुर और ये अफ्रीकन कंट्रीज। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। यू कैन यूज द निमोनिक्स दैट सूट्स यू, ठीक है, ये भी नोट कर लो। तो एक बार फिर नाम देख लेते हैं। यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, यानी यूरोपियन कंट्रीज जो ईस्ट पे हैं, ठीक है। फिर नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज भी आ गए, ठीक है। दो इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। फिर यूके यूएसए तो मुझे वैसे ही याद हो गया था, है ना। और श्रीलंका और नेपाल मैंने बता दिया बॉर्डरिंग कंट्रीज है। सिंगापुर भी याद करना पड़ा था और अफ्रीकन कंट्रीज भी याद करना पड़ेगा। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। अब यार्न यानी जो स्पिनिंग हुई है उसमें जो यार्न बना है उसका तो हमारा मतलब बहुत ज़्यादा इंडिया में यार्न प्रोडक्शन है। इस वजह से वी शेयर इन द लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। जो वर्ल्ड ट्रेड है कॉटन यार्न का उसमें इंडिया का भी अच्छा खासा नाम है। आर स्पिनिंग मिल्स आर वेरी मिल्स आर कॉम्पिटिटिव, यानी कि अच्छी है इतनी कि कंपटीशन के लायक है एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। और जितने भी सारे हम फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं वो मतलब कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। यहाँ पे इंडिया में किसी भी तरीके का फाइबर प्रोडक्शन यूज़ किया जा सकता है। वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग, ये जो है ये हाई क्वालिटी यार्न नहीं यूज़ कर सकते, है ना, जो कि इंडिया में बना है, ठीक है।
तो हमने जो यान बनाए हैं, फाइबर्स बनाए हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में वीविंग, निटिंग ये जो हो रहे हैं ना, हम इनको इंडिया में इनको हम अपना यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा हाई क्वालिटी यान है, लेकिन यहाँ की वीविंग यूनिट इतनी अच्छी नहीं है जो इतने अच्छे हाई क्वालिटी यान को यूज़ करे। There is some large and modern factories in these segments, but most of the production is a fragmented small unit which caters to the local market. अब कुछ है अच्छी मतलब यहाँ इंडिया में है ना, तो देर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट, दैट मीन्स वीविंग के सेगमेंट में हैं अच्छी यूनिट्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। इस वजह से क्या है कि विच कैटर्स टू लोकल मार्केट, इस वजह से क्या है कि लोकल मार्केट जो है ना वही उन वीविंग एंड निटिंग प्रोसेसिंग इन चीज़ों को केटर कर पा रहा है, जो दूर दराज में फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो नहीं कर पा रही। दिस मिसमैच इज मेजर ड्रॉबैक, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फॉर द इंडस्ट्री। एज अ रिजल्ट कई सारे हमारे जो स्पिनर्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन यान को, वाइल एपरल यानी जो गारमेंट आ रहे हैं ना हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। अब इसका आपको समझ नहीं आया ना, तो मैं आपको समझाती हूँ क्या बोला है इधर। इंडिया की स्पिनिंग अच्छी है, क्या अच्छी है? स्पिनिंग, स्पिनिंग इज गुड, ये अच्छी है, गुड है, ठीक है। इंडिया सभी तरह के फाइबर्स बना पाता है और सभी बहुत अच्छे यूज करे जा सकते हैं। वीविंग अच्छी नहीं है, वीविंग इज नॉट गुड, नॉट गुड। कुछ हैं गुड, सम आर गुड, सम आर गुड, लेकिन वो स्कैटर्ड है, वो स्कैटर्ड है। मतलब मान लो ये मेरा इंडिया है, यहाँ पे मैंने लगाई है स्पिनिंग मिल, और यहाँ पे है मेरी वीविंग। अब यहाँ से यहाँ ले जाने में मुझे बहुत हो रहा है ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एक्सपेंस। तो मैं क्या करूँगी, क्या मैं यहाँ ले जाऊँगी अपने यान को जो मैंने बनाया है? नो, व्हाट आई विल डू, एक्सपोर्ट इट टू दी अदर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो यान खरीदने आते हैं, तो वो यान खरीदेंगे मुझसे, मुझे पैसा मिलेगा उसमें। तो स्पिनर्स क्या कर रहे हैं, वो यान ना इंडियन वीवर्स को ना दे करके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से यान खरीद के ले जा रहे हैं, जैसे अमेरिका में ले गए, तो अमेरिका में वो यान जाएगा और फिर वो फैब्रिक में बन जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाई टेक मशीन्स। और फिर जब वो कपड़ा बन गया, क्लोथ यहाँ आ जाएगा इंडिया में। अब क्लोथ इधर आ रहा है, अब देखो हमने ही चीज़ बनाई और हमको ही खरीदनी पड़ेगी वो क्लोथ। अब यहाँ के जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस अनस्टिच क्लोथ को खरीदेंगे और फिर उसे बेचेंगे, ये इशू है, ठीक है। अब आगे का कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।